Hi, good morning, students. In my previous lecture on CPC, we were on the topic of review. We have seen that review is a very, very extraordinary power which statute gives. The reason is that once a judgment has been passed by any court, then the same court cannot alter its own judgment. That's the general rule. However, since civil law has such a wide dimension, बहुत wide dimensions होते हैं, chances are there कि there can be problems which may arise out of overlooking certain facts or the evidences are not available with us. So whenever a inherent mistake comes up, a mistake which is apparent on the face of it, then CPC gives the power of review to the same court, to the same judge. रिव्यू जो है वो एक एक्सेप्शन, जैसे एक बार एक कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट दे दिया तो रिव्यू की पावर तो कायदे से नहीं होनी चाहिए. Because we go with the presumption that all judgments are given after proper application of mind. और हम एविडेंस एक्ट में पढ़ चुके हैं सेक्शन 114 में कि all judicial acts are done as per law. All judicial acts are done in a judicious manner. तो जजमेंट तो एक पूरा एक एप्रिसिएशन ऑफ द एंटायर एविडेंस है. तो हम ये मान के चलेंगे कि कोर्ट हैज अप्लाइड इट्स माइंड कंप्लीटली एंड नो fill in the blanks are left. But कई बार क्या होता है, despite my best efforts, पार्टी के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद एविडेंसेस बाद में मिलते हैं. कई बार जजमेंट पास होने के बाद उसको कोई ऐसा एविडेंस मिल गया जिससे पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा. या फिर पिछली बार हमने देखा था ग्राउंड्स जो हैं वो हमारे पास ऑर्डर 47 के रूल 1 में किए हुए थे और वो 3 ग्राउंड्स ही रिव्यू के ग्राउंड्स हैं. वो 3 ग्राउंड्स कौन से थे, एक बार वापस रिवीजन कर लें. 3 ग्राउंड्स थे: डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस, दूसरा एनी मिस्टेक और एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, या तीसरा एनी अदर सफिशिएंट रीजन. हमने तीनों पे पिछले लेक्चर में डिटेल में बात की थी. ये बेसिकली 3 कारण हैं जिसमें रिव्यू पॉसिबल है. मियरली क्योंकि एक कोर्ट ने कुछ और सोच लिया या कोई और ऐसी मिस्टेक कर दी, वो ग्राउंड नहीं है रिव्यू का. रिव्यू की ये 3 ग्राउंड्स ही रिव्यू के ग्राउंड्स हैं और ये हमें ऑर्डर 47 ने बहुत क्लियरली बताया था. I'd just like to dictate a few things about review, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, रिव्यू और रिवीजन पे एक फुल क्वेश्चन आएगा 15 नंबर या 20 नंबर का. That is the reason why we must have a complete knowledge of this aspect of CPC. रिव्यू जो है वो कायदे से, as I told you, it is an exception. क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एक प्रिजम्पशन है कि हर कोर्ट सही जजमेंट देता है. Just a few things I would make you please write down. The power of review is a creation of the statute. It is not an inherent power and must be conferred by law specifically.
The review proceedings are the creation of Order 47 and the grounds of review, 3 grounds अब वो लिखने, are clearly given in Rule 1. No court or even a quasi-judicial authority or even an administrative body can review its judgment or order unless law specifically empowers it to do so. If we go to the Constitution, Article 137 specifically empowers the Supreme Court to review its judgments or any rules it makes under Article 145 of the Constitution. If we go to the Supreme Court rules, Supreme Court अपने rules बनाता है जो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं, जो आर्टिकल 145 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको पावर है. तो बहुत जगह जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो सारे कोर्ट्स को बाइंडिंग करते हैं. तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स में जाते हैं तो वहां पे क्लियरली लिखा है दैट इन सिविल केसेस रिव्यू लाइज only on any of the grounds specified in Order 47 Rule 1 of CPC. We also have on this Union of India versus Sandur, S-A-N-D-U-R, Sandur, Manganese, M-A-N-G-A-N-E-S-E, Union of India versus Sandur Manganese and Iron Ore Limited, 2013 Supreme Court. In this case, the Supreme Court has clearly ordained that review proceedings are not in the form of an appeal. तो रिव्यू प्रोसीडिंग्स अपील प्रोसीडिंग नहीं है, and hence have to be strictly confined to Order 47 Rule 1 of CPC. A review does not cover wrong decisions. ये next point है कि कोर्ट ने जी गलती कर दी. That is not a point. So please remember, a wrong decision is subject to appeal, which is before a higher forum. अगर मैंने कोई गलत डिसीजन दिया एज अ कोर्ट तो मेरी अपील मेरे सुपीरियर कोर्ट के पास है, तभी उसको अपील कहते हैं, उसको रिव्यू नहीं कहते. So please write down, a wrong decision can be subject to appeal to a higher forum, but a review is not permissible on the ground that the court has given a faulty decision. The scope of review, hence, in Order 47 Rule 1 is limited. And merely because the court could have taken another view is not a ground for review. कोर्ट एक और व्यू ले सकता था, उसने वो नहीं लिया, गलत व्यू ले लिया, चलो जी वो ठीक कर देते हैं, अब दूसरा व्यू ले लेते हैं, ये अलाउड नहीं है. जो मैंने अभी बोला है, दिस वाज क्लैरिफाइड बाय कर्नाटका हाई कोर्ट, चिन्नम्मा वर्सेस वेंकट स्वामी, चिन्नम्मा CHINNAMMA वर्सेस वेंकट स्वामी, 2003 कर्नाटका हाई कोर्ट. So I hope I'm clear on this very, very important aspect कि 3 चीजें हैं, सिर्फ वो तीनों ग्राउंड्स हमने पिछली बार डिटेल में डिस्कस किए थे, सिर्फ उन पे आपका रिव्यू पॉसिबल है. मेरा जो लास्ट पॉइंट हमने पिछली बार डिस्कस किया था, सफिशिएंट रीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
that means sufficient reason has to be read in continuation with the other two grounds. तो sufficient reason को हमने continuously पढ़ना है पहले दो reasons के साथ. तो sufficient reason में क्या नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, गलत आपने डिसीजन ले लिया या गलत तरफ आपने दो व्यूज पॉसिबल थे, आपने दूसरा व्यू ले लिया, दीज आर नॉट कवर्ड. अब एक पॉइंट ये उठता है, रिट पिटिशंस की मैं एक बार बात करूंगा. सी बेसिकली अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बात करने जा रहा हूं. हमें ऑर्डर 47 रूल 1 पढ़ा कि 3 ग्राउंड है हमारे रिव्यू के, ठीक है. तो जब मैं कल रिट में जाता हूं, यू नो, आई गो टू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं भी कोई पार्टी एग्रीव्ड है और कहीं भी इनजस्टिस हुआ है तो कहीं पे भी वो 226 में जा सकता है. अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैं 226 में जाता हूं तो क्या हाई कोर्ट इज बाउंड बाय ऑर्डर 47 रूल 1? क्या अब हाई कोर्ट भी सिर्फ इन तीन चीजों पे रिट ले सकता है 226 में, कि कोई भी ग्राउंड पे ले सकता है? ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार इंटरव्यू में पूछा गया. मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनो. सुन लो, पहले समझ लो, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा. मेरे पास एक और पावर है जो एक ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, आर्टिकल 226. जहां मुझे कुछ भी रेमेडी नहीं मिलती वहां मैं 226 में जा सकता हूं, ठीक है. अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मैं जब 226 में जा रहा हूं कि सर वो जो जजमेंट है वो है, वो उसमें आप अपीलेबल नहीं है या जो भी है, नया इशू आ गया, जो भी व्हाटएवर, तो क्या अब रिट प्रोसीडिंग 226 की वुड इट बी बाउंड डाउन बाय ऑर्डर 47 रूल 1? यानी कि क्या रिट प्रोसीडिंग भी सिर्फ 3 ग्राउंड पे की जा सकती है, क्योंकि रिव्यू तो 3 पॉइंट्स पे होता है सिर्फ. अब एक चीज कभी नहीं भूलनी है, प्लीज, कभी भी नहीं. सेक्शन 141 मैंने आपको कराया था बहुत डिटेल में, उसका एक्सप्लेनेशन कभी नहीं भूलना. एक्सप्लेनेशन क्या है, एक बार चलें, बहुत जरूरी पॉइंट है, मैं चाहता हूं कभी आप भूलो ना जिंदगी में. 144 141 में चलो एक बार, सेक्शन 141. क्या कहता है, उसके एक्सप्लेनेशन में आओ. In this section, proceedings includes proceedings under Order 9, but does not include any proceeding under Article 226 of the Constitution. किस चीज पे है 141 miscellaneous? The procedure provided in the code regarding suit will be followed as far as may be applicable in all proceedings in any court of civil jurisdiction. But this procedure of CPC will not bind any writ proceeding under Article 226. So इसका मतलब ये हो गया, रिट में CPC नहीं लगेगी. अगर रिट में CPC नहीं लगेगी तो ऑर्डर 47 CPC का ही पार्ट है, कैसे लगेगा? So that is why please remember 226 आर्टिकल जो है, जो हमारा ब्रह्मास्त्र है राइट्स का, उसके ऊपर CPC कोई बाइंडिंग प्रोसेस नहीं रखती. प्लीज राइट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए इसको, मैं बता देता हूं आपको. ये जो मैं अभी कोट कर रहा हूं, ये अगेन गुजरात हाई कोर्ट से कोट कर रहा हूं. कॉन्टिनेंटल टेक्सटाइल मिल्स वर्सेस भारत पटेल 1999 गुजरात हाई कोर्ट. Keeping in view section 141 explanation, the provision of order 47 rule 1 shall not apply to writ proceedings under article 226. An application under article 226 of the Constitution does not bar the High Court to review any decision
The powers of Article 226 to a High Court transcend any restraints which may be laid down by CPC. आई होप सब समझ गए होंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उस टाइम तो हमने 141 में एक्सप्लेनेशन शायद आप ध्यान ना दिया हो, आज आप समझ रहे होगे कि उसकी वैल्यू क्या है। Now that we are clear with this, we now go on to the next rules. Rule 2 was deleted, it was repealed. Rule 3. The provisions as to the form of preferring appeals shall apply mutatis mutandis for applications for review. तो जो हमारे प्रेफर करने का तरीका है वही फॉर्म होगा रिव्यू का। थोड़े चेंजेस कर देंगे। म्यूटाटिस मुटेंडिस मीन्स आफ्टर मेकिंग सर्टेन रिक्वायर्ड चेंजेस। तो आफ्टर मेकिंग सर्टेन रिक्वायर्ड चेंजेस फॉर द नीड्स ऑफ रिव्यू, the form in which we prefer appeals will be applied to review. Review का भी वही तरीका होगा। Rule 4. Where it appears to the court that there is not sufficient ground for review, it shall reject the application. तो जहां कोर्ट को लगा कि रिव्यू करने के लिए कोई मसाला नहीं है, रूल 1 का कोई एस्पेक्ट कवर नहीं हो रहा है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है तो नेचुरली दूसरी पार्टी को बुलाना जरूरी है। तो सब रूल 2, एप्लीकेशन वेयर ग्रांटेड, वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी ग्रांटेड, इट शैल ग्रांट द सेम, प्रोवाइडेड। रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर देगा, अगर हाँ करता है तो हाँ कर देगा, प्रोवाइडेड। क्लॉज ए, नो सच एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड विदाउट प्रीवियस नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी, to enable him to appear and be heard in support of the decree order review of which is applied for. तो नेचुरली अगर आप हाँ कर रहे हो कि ठीक है मैं रिव्यू सुनने को तैयार हूं, तो रिव्यू करने को तैयार हूं, तो ठीक है फिर दूसरी पार्टी को भी बुलाना अनिवार्य है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो आप उसको भी बुलाओगे। क्लॉज बी, नो सच एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस which the applicant alleges was not within his knowledge or could not be adduced by him when the decree or order was passed without strict proof of such allegation. इस क्लॉज बी का मतलब क्या है कि अगर आपने ये ग्राउंड लिया है कि जी ये एविडेंस मेरे पास था नहीं और अभी आया, दिस इज अ फ्रेश एविडेंस विच आई हैव गॉट and despite my best diligence I could not procure it, तो उसके ऊपर burden of proof ये है कि वो प्रूव करे कि बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी उसको ये एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि अगर वो नेग्लिजेंट था तो फिर रिव्यू नहीं मिलेगा। तो जहां पहला ग्राउंड था हमारा कि मेरे पास ये एविडेंस था ही नहीं और अभी मिला है, एंड दिस एविडेंस आई कुड नॉट प्रोक्योर despite my best diligence, I was not negligent, तो इसका सिर्फ एक प्राइमा फेशी एविडेंस नहीं देना है मैंने, इसका स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए, क्योंकि पूरा रिव्यू इस पे टिका हुआ है कि सर मैं नया एविडेंस ला रहा हूं, आप पहले क्यों नहीं लाए? सर पहले था नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे नहीं मिल रहा था। वो बहुत कोशिश क्या की आपने, वो पहले आप उसका स्ट्रिक्ट प्रूफ दोगे। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। तो जब भी ग्रांट करेंगे, पहला पॉइंट दूसरी पार्टी को भी हम बुलाएंगे, दूसरा पॉइंट कि हम स्ट्रिक्ट प्रूफ मांगेंगे कि आपने पूरी कोशिश की थी वो एविडेंस लाने की जो आप प्रोक्योर पहले नहीं कर पाए डिक्री के और अब आप लाए। रूल 5, where the judge or judges or any one of the judges who passed the decree or made the order, review of which is applied for, continues or continue attached to the court at the time when the application for a review is presented, and is not or are not precluded by absence or other cause for a period of 6 months next after the application for considering the decree or order to which the application refers, such judge or judges or any one of them
or any of them shall hear the application and no other judge shall hear the same. एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि अगर एक जज ने सुना है, जिस जज ने के सुना है वो ही रिव्यू करेगा, अनलेस कि वो 6 महीने तक ही इज नॉट अवेलेबल आफ्टर एप्लीकेशन उसने डाली है, अदरवाइज वो ही सुनवाई करेगा। अगर हाई कोर्ट का मामला है तो वही जज करेंगे, अगर वो 6 महीने तक आगे अगर गायब मतलब एब्सेंट नहीं होते हैं तो वो ही करेंगे। अगर ट्रांसफर हो गया है, नेचुरली रिटायरमेंट हो गया, तब तो और कोई करेगा, बट अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वही जज उसकी सुनवाई करेंगे। कॉमन सेंस की बात है, सारा केस उन्होंने सुना है, उनको पूरा आइडिया है, तो नया आदमी आएगा तो वो नए सिरे से देखेगा, तो इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई सपोज हाई कोर्ट के डीबी ने देखा है, एक डिविजनल बेंच ने सुनवाई की थी, तो वो दोनों जज होंगे। अगर बाई चांस एक जज का रिटायरमेंट हो गया है या कहीं और एलिवेशन हो गया, चले गए हैं, तो फिर एक जज तो वो ही रहेंगे और दूसरा जज फिर नेचुरली जो बेंच बनेगा वो सुनवाई करेगा। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। तो एक चीज हो गई, सेम कोर्ट उसको करता है और सेम जज भी उसको रिव्यू करता है। रूल 6, एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। जहां हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, where the application for a review is heard by more than one judge and the court is equally divided। अब यहां मामला चला गया, एक डीबी है, एक डिविजनल बेंच है, 2 जज है। एक जज कहते हैं हाँ होना चाहिए रिव्यू, दूसरे जज कहते हैं नहीं। तो जहां 1+1 हो के 1:1 हो, एक कहता है हाँ और एक कहता है ना, तो फिर एप्लीकेशन हैज टू बी रिजेक्टेड। So where the application for a review is heard by more than one judge and the court is equally divided, then the application shall be rejected। ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स का है कि जहां पे डीबी है और एक जज रिव्यू करने को एक्सेप्ट कर रहा है और एक जज मना कर रहा है, तो फिर क्या होगा? Will it go to a third bench ये वगैरह वगैरह? No, it will be rejected। क्यों? रिव्यू है, हमारे पास और बड़े ऑप्शंस हैं। तो इसीलिए रिव्यू अगर एक, जहां पे एक से ज्यादा जजेस का बेंच हो, वहां पे एक हाँ करे और एक ना करे, तो फिर रिजेक्ट होगा। सब रूल 2, वेयर देयर इज मेजॉरिटी द डिसीजन विल बी एज पर द मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन। नेचुरली जहां पे मेजॉरिटी है, 3 लोग, 3 जजेस का बेंच है, 2 हाँ कर रहे हैं, एक ना कर रहा है, हाँ होगा। ओके, Now we come to rule 7, again another very important rule। ये हमें बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। Now when I come to rule 7, ये प्रीलिम्स का भी रूल है, मेंस का भी है और इंटरव्यू का भी है। तो ऑर्डर 47 रूल 7 बहुत ध्यान से हमेशा याद रखना है। लेट्स सी Order 47, Rule 7, Sub Rule 1. An order of the court rejecting the application shall not be appealable। Point number 1, अगर कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। क्यों? बेसिक रीजन इज we go with the presumption that all judgments are correct। उनमें कोई inherent defects नहीं है, हम तो ये मान के चल रहे हैं। तो जहां पे कोर्ट ने देख के बोला नहीं कोई inherent defect नहीं है, या वो तीनों ग्राउंड जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, मैंने रिजेक्ट कर दी, अब उसकी कोई अपील नहीं है। बट उल्टा ले लो, मैंने कह दिया कि हां रिव्यू बनता है। अब दूसरी पार्टी जो अभी तक तो बहुत खुशियां मना रही थी कि वो जीत गई है, अब उसका उल्टा हो गया। तो पहले तो जैसे डिक्री पास होगी, चलो एक पार्टी बड़ी खुश थी कि जिसके फेवर में होगी, अब रिव्यू ऑर्डर हो गया। अब रिव्यू ऑर्डर हो गया तो वो जो खुशी थी वो सारी गई।
तो अब अगर आप हाँ कर रहे हो कि रिव्यू होना चाहिए तो अपीलेबल है. लेट्स रीड द सेकंड लाइन. बट एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन, तो अगर ग्रांट कर रहे हो आप एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, मे बी ऑब्जेक्टेड टू at once by an appeal from the order granting the application, or in an appeal from the decree or order finally passed or made in the suit. दो जगह पे आप ग्रांट ऑफ रिव्यू अगर ऑर्डर दे रहे हो, दो जगह अपील पड़ती है. पहली अपील ऑर्डर 43, ऑल ऑर्डर्स आर अपीलेबल वेयर, ऑर्डर 43. तो ऑर्डर 43 में जब मैं आता हूं, उसका क्लॉज W में जाता हूं, तो वहां पे क्लियरली लिखा है, लास्ट क्लॉज पढ़ो ऑर्डर 43 का, ऑर्डर 47 का, एन ऑर्डर अलाउइंग रिव्यू इज अपीलेबल. या फिर आपने अगर डिक्री ही इमीडिएटली आपने चैलेंज कर दी और उसमें आप ये भी उसका रिव्यू भी चैलेंज कर रहे हो, तो वहां भी कर सकते हो. तो चाहे डिक्री की आप अपील में कर रहे हो तो वहां उसके साथ ही इस ऑर्डर को भी चैलेंज कर दो, या फिर आप ऑर्डर 43 में जाके क्लॉज W में जाके आप एन ऑर्डर ग्रांटिंग द रिव्यू इज नाउ अपीलेबल. इट्स एन अपीलेबल ऑर्डर. सो प्लीज रिमेंबर, दो चीजें हो गई. अगर तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूं कोई अपील नहीं है, अगर मैं अलाउ कर रहा हूं तो अपील है. So I hope now everybody is clear on this very, very important issue, and please correlate it with Order 43, Clause W, Rule 1, of course. Okay. I go to Sub-Rule 2, where the application has been rejected in consequence of the failure of the applicant to appear. अब यहाँ पे रिजेक्शन है कि एप्लीकेंट ने डाल तो दी कि सर मुझे रिव्यू अलाउ करो, और जिस दिन सुनवाई थी वो आया नहीं या उसका वकील नहीं, व्हाटएवर. अब यहां पे रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑन डिफॉल्ट ऑफ द एप्लीकेंट है. ये अलग एक क्वेश्चन है कि सपोज देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द एप्लीकेंट, देन व्हाट इज द लॉ. तब वही लॉ जो हम ऑर्डर 9 में देख चुके हैं या कई जगह देख चुके हैं कि जहां पार्टी प्रेजेंट नहीं होती है और वो प्रूव कर दे बाद में कि सफिशिएंट रीजन था, तब हम अलाउ कर देते हैं. वही चीज यहां रिफ्लेक्टेड है. तो लेट्स गो एंड सी दिस. सब रूल 2, where the application has been rejected in consequence of the failure of the applicant to appear, he may apply for an order to have the rejected application restored to the file, where it is proved to the satisfaction of the court that he was prevented by any sufficient cause from appearing when such application was called on for hearing. The court then shall order it to be restored to the file upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit, and then appoint a future date for next hearing. So I hope I'm clear on this कि जहां पे डिफॉल्ट की वजह से रिजेक्ट हो गया और अब वो एप्लीकेंट डालता है कि सर सफिशिएंट रीजन था, मैं क्यों नहीं आ पाया, सर हार्ट अटैक हो गया था, हॉस्पिटल में था, जो भी रीजन था, और कोर्ट उससे कन्विंस्ड है कि हाँ जेन्युइन रीजन है, तो फिर वो ये जो रिजेक्शन ऑफ रिव्यू का ऑर्डर था इसको सेट असाइड कर देगी और अगली डेट हेयरिंग की डाल देगी. होप एवरीबॉडी इज क्लियर. तो ये जो रूल 7 है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत ध्यान रखना है इसको, सो खास मार्क कर लेना. एक तरीका है जो मैं कहता हूं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स, ये वाले इतना वास्ट सीपीसी पर. आई एम वेरी हैप्पी जो भी बच्चे मुझे मिलने आते हैं, जिनसे मैं बात भी करता हूँ, सीपीसी सबकी बहुत स्ट्रांग हो गई है. आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबकी सीपीसी इज वेरी स्ट्रांग. तो ऐसी चीजों को ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी पूरी सीपीसी ये कलर्ड है, सारे कलर्स हैं, तो इनकी जो हेडलाइंस होती है ना वो रेड में हाईलाइट कर लिया करो. जो मैं कहता हूँ ना ये इंपॉर्टेंट रूल है, उसको रेड में कर लिया करो, ताकि एक नजर में एक सीपीसी देखोगे सर ने ये इंपॉर्टेंट चीजें बोली हुई हैं, ये सारी रेड का उनका हेडलाइन जो है वो रेड में हाईलाइटर से कर दो ताकि आपको याद रहे. ओके, so I hope I'm clear on rule 7. We go on to rule 8. Before I go to rule 8, sub rule 3,
No order shall be made under sub rule 2 unless notice of the application has been served on the opposite party. Naturally, जब आप किसी की दोबारा सुनवाई कर रहे हो तो ऑपोजिट पार्टी का भी होना जरूरी है, वो भी तो कंटेस्ट करे कि सर झूठ बोल रहा है, कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट ले आया, व्हाटएवर बी द रीजन। तो कभी भी जब आप रिव्यू का पिटीशन आप सुनवाई कर रहे हो तो ऑपोजिट पार्टी को बुलाना जरूरी है। रूल 8, registry of application granted and order for rehearing. When an application for review is granted, a note thereof shall be made in the register. जो हमारा सूट रजिस्टर है उसमें हो जाएगा किसकी रिव्यू भी डली है। And the court may at once rehear the case or make such order in regard of the rehearing as it thinks fit. तो immediately rehearing कर सकती है या जो भी उसको सही लगता है वो उसके इमीडिएट भी कर सकती है, बाद में भी डेट्स डाल सकती है depending on the workload of the court. Rule 9, bar of certain applications. No application to review an order made on an application for a review or a decree order passed or made on a review shall be entertained. In simple words, Rule 9 says there is no review of a review. तो अगर आपने कोई रिव्यू डाल दिया है तो उस एप्लीकेशन का रिव्यू का ऑर्डर नहीं मिल सकता। So there is no review of a review. Rule 9 makes it very clear. I hope everybody is now crystal clear about the entire law of review in CPC. मैंने आपको बहुत सारा डिटेल्स दिए हैं, उसको आप प्रॉपर एक फ्रेम कर लो क्वेश्चंस। क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूं। The power of review is a creation of statute and must be exercised in extraordinary conditions, critically examined. एक और क्वेश्चन जो बन सकता है, the grounds of review are limited since review is an extraordinary power, critically examined. जो मैंने सारा डिस्कस किया 2 दिन में वो सारा कवर हो जाएगा। Now that we are clear with this, we now go to the third thing. रेफरेंस हमने किया, रिव्यू हमने किया, अब हम चल रहे हैं रिवीजन पे। So let's now go on to the topic of revision. बेसिकली एक रिवीजन क्या चीज होती है, पहले हम चलते हैं सिर्फ एक बेसिक वर्ड से, रिवीजन क्या है पहले वो समझते हैं। मैं आई वुड लाइक टू गो टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट सीधा। रिवीजन मीन्स द एक्शन ऑफ रिवाइजिंग स्पेशली critical or careful examination on perusal with a view of correcting or improving. ये एक डेफिनेशन दी है हमें सुप्रीम कोर्ट ने। शंकर राम चंद्रा वर्सेस कृष्ण जी बापट, शंकर राम चंद्रा वर्सेस कृष्ण जी बापट, BAPAT 1970 Supreme Court. Revision means the action of revising, especially critical or careful examination on perusal with a view to correcting or improving. हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आवर जुडिशरी इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक पिरामिड की तरह होती है। पिरामिड के टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, जिस तभी हम इसको कहते हैं एपेक्स कोर्ट। स्टेट्स का हेड हाई कोर्ट अंडर द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे लोअर कोर्ट्स। जब मैं कहता हूं दैट इंडिया हैज अ हायरार्कियल जुडिशियल सिस्टम, इसका मतलब यह होता है कि इंडिया की जुडिशरी जो है
सुपीरियर कोर्ट is the boss of the lower court. हायरार्की में हमेशा लोअर कोर्ट का ऊपर वाला कोर्ट उसका सुपरवाइजरी कोर्ट होता है. ऊपर वाले कोर्ट सुपीरियर कोर्ट होते हैं. मैं वर्ड सुपीरियर यूज कर रहा हूं तो सुपीरियर का मतलब क्या है? सुपीरियर का दो तरह के कॉनोटेशन होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर एंड जुडिशियली सुपीरियर. तो जब भी मैं कहता हूं इज माय सुपीरियर कोर्ट, तो सुपीरियर का कॉनोटेशन क्या है? दो कॉनोटेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर और जुडिशियली सुपीरियर. एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर वो आपकी पूरी, आपको आपको कितना काम दिया जाए, कौन सा काम दिया जाए वगैरह वगैरह वो डिसाइड करता है. आपको छुट्टियां, आपको जाना है, आपको वो वगैरह, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. व्हेन आई से जुडिशियली सुपीरियर, तो वो आपके जितने भी जजमेंट्स हैं उनकी अपील में बैठेगा या रिवीजन में बैठेगा. रिवीजन इज बेसिकली अ पावर गिवन टू अ सुपीरियर कोर्ट to revise your judicial pronouncements. Revision is again an extraordinary power because we go with the presumption that all acts of the courts are hunky-dory. All acts of the courts are as they should be. जब भी हम रिवीजन में जाते हैं, we are casting an aspersion on the lower court कि लोअर कोर्ट अपना काम ठीक नहीं कर रहा. तो रिवीजन कब होगा? जब कोई ब्लैटेंट नजर आ रहा हो कि डेरेलिक्शन ऑफ जस्टिस है. तो अगेन रिवीजन इज नॉट एन इनहेरेंट राइट. नो डाउट रिवीजन का राइट ऑटोमेटिकली इज इनबिल्ट in a hierarchical system of judiciary, इसमें कोई शक नहीं है. But then again, revision is a creation of statute कि कौन से कोर्ट्स आपके रिवीजन में बैठेंगे. रिवीजन दोनों में है, सीपीसी में भी है और सीआरपीसी में भी है. But then रिवीजन सिर्फ सुपीरियर कोर्ट्स, क्योंकि हायरार्की है हमारी, तो हमेशा रिवीजन क्यों होता है? रिवीजन होता है कि जो भी लोअर कोर्ट ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं उनको ठीक करने के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. तो रिवीजन की पावर जब भी एक्सरसाइज करता है सुपीरियर कोर्ट, द बेसिक वर्ड विच गवर्न्स इज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. रिवीजन, as I said, and the Supreme Court also has said, revision always casts aspersion on the working of the lower court. हमारे पास लोअर कोर्ट की जो भी डिसीजंस हैं, वो अगर ओपिनियन गलत है तो हमारे पास अपील होती है. इसीलिए रिवीजन वही होती है जहां अपील नहीं होती है. नहीं तो आप अपील में जाओ, अपील में हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट सुनवाई करेगा. तो कायदे से वो चीजें जाएंगी रिवीजन में जो अपीलेबल नहीं है. एक और चीज नॉर्मली अपीलेबल नहीं होती, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स. इंटरिम ऑर्डर सेम कोर्ट ठीक कर सकता है. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स कैन बी सेट राइट बाय द सेम कोर्ट. इसीलिए नॉर्मली इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिवीजन. क्वेश्चन ये उठता है, अब अगर मैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के खिलाफ चाहता हूं रिवीजन, तो क्या करूं? रिवीजन तो अलाउड नहीं है. तो ऐसे मामलों में आपके पास आर्टिकल 226 एंड 227 हाई कोर्ट की बहुत बड़ी पावर है. अब वहां चले जाओ, वो तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर भी सुन सकता है, वहां पे तो कोई बंदिश नहीं है.
सो हमारे पास हमारे पूरे लॉ में अपील है, रिव्यू हम देख चुके हैं, रिवीजन है, आर्टिकल 226 है, कुछ भी नहीं है तो आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन, आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट है. सो वी हैव सो मेनी रेमेडीज अवेलेबल. रिवीजन की रेमेडी एक बहुत लिमिटेड रेमेडी है, लिमिटेड मैटर्स पे. इसके ऊपर आई वुड लाइक टू कोट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. बलदेव दास शिवलाल वर्सेस फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 1970 सुप्रीम कोर्ट. The primary object of revision is to prevent the subordinate courts from acting arbitrarily, capriciously, illegally, or irregularly in the exercise of their jurisdiction. I repeat, the primary object of revision is to prevent the subordinate courts from acting arbitrarily, capriciously, CAPRICIOUSLY, illegally or irregularly in the exercise of their jurisdiction. It clothes the High Court with the powers necessary to see that the proceedings of the subordinate courts are conducted in accordance with the law within the bounds of their jurisdiction and in furtherance of justice. ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा रिवीजन का. अगर आपने नोट किया हो जो मैंने अभी लाइंस पढ़ी हैं, इसमें एक चीज सीपीसी में बहुत क्लियर है. Revision lies only on matters of jurisdiction. Jurisdiction is the key word of revision in CPC. सारे मामलों में नहीं है. It is, as I said, only on jurisdictional matters. Let's go through it. Now, इसीलिए एक चीज मुझे I would also like to quote here. लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 54th रिपोर्ट. लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि इन व्यू ऑफ आर्टिकल 227 रिवीजन का जो प्रावधान है सीपीसी में वो डिलीट कर देना चाहिए. 227 है ही आपके पास, तो आप डिलीट कर दो. डिलीट तो नहीं किया लेजिस्लेचर ने, हाँ अमेंड कर दिया. इसलिए जो आज हम ये वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं वो एक अमेंडेड सेक्शन है जो 1976 में अमेंड हुआ था. सेक्शन 115 डील्स विद रिवीजन. There is no order on this. Revision है. Because naturally हाई कोर्ट की ही पावर है. रिवीजन की सीपीसी में पावर हाई कोर्ट की है. अनलाइक सीआरपीसी जहां पे सेशन कोर्ट को भी रिवीजन की पावर है. सेक्शन 115 is a head section for revision. And again, as I said, this is an extremely important section from our examination point of view. We'll deal it in different parts. एक बार हम डिटेल देखते हैं, एक बार पहले एक फर्स्ट रीडिंग देते हैं. रिवीजन सब सेक्शन 1. The High Court may call, the High Court, जहां मैं स्ट्रेस देता जा रहा हूं उनको वैसे हाईलाइट करते जाओ. The High Court may call for the record of any case.
मे, सुपरवाइजरी है उसकी, उसकी जुरिस्डिक्शन है, उसकी मर्जी है. Call for the record of any case. Now when I say any case, any suit नहीं लिखा है. The word case is a far broader word than the word only suit. मैं इस पर आऊंगा बाद में, एक एक वर्ड पे हम बात करेंगे. पहले इसको ध्यान से एक बार फर्स्ट रीडिंग में समझ लेते. The High Court may call for record of any case. Please underline, may call for record of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court. अपने से नीचे कोई भी कोर्ट का रिकॉर्ड मंगा सकता है किसी भी मामले में. And in which no appeal lies thereto, which has no appeal. And if such subordinate court appears, तो प्लीज रिमेंबर, अगर अपील है, अगर अपील लाई करती है तो रिवीजन नहीं है. ऑलरेडी जा रहे हैं सुपीरियर कोर्ट में, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करते हो? सो इफ देयर इज नो अपील, देन ओनली देयर विल बी रिवीजन. एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स, 3 थिंग्स, 3 गलतियां की हैं अगर उसने, ओनली दीज आर द ग्राउंड्स, these are the only grounds for revision. पहला, it has exercised the jurisdiction not vested in it by law. पहला, उसने एक ऐसा jurisdiction ले लिया है जो उसके पास लॉ ने नहीं दिया था. पहला. दूसरा, it has failed to exercise the jurisdiction so vested. उसके पास jurisdiction था, उसने वो नहीं यूज किया. तीसरा, to have acted in the exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity. या तीसरा, jurisdiction में उसने illegally या material irregularity से एक्ट किया है. Then the High Court may make such order in the case as it thinks fit. तीनों ग्राउंड्स में कॉमन वर्ड क्या है? जुरिस्डिक्शन. पहले उसकी नहीं थी, उसने यूज कर दी. दूसरे में उसकी थी, उसने नहीं की. और तीसरा, अपना जुरिस्डिक्शन उसने इलीगली या इरेगुलरली यूज किया है. मटेरियल, द वर्ड इज मटेरियल. मटेरियल इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी. तीनों वर्ड्स में जो एक चीज कॉमन है वो है जुरिस्डिक्शन. अगर जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट नहीं है तो रिवीजन नहीं है. तो जहां पे कोई गलत डिसीजन दे दिया, वो जुरिस्डिक्शन से, मेरा जुरिस्डिक्शन है पर मैंने कोई गलत डिसीजन दे दिया, वो रिवीजन के काबिल नहीं है फिर. तो प्लीज रिमेंबर, रिवीजन सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शनल मामलों से आएगा. अगर मेरा जुरिस्डिक्शन था, जुरिस्डिक्शन में कोई गलती नहीं है, पर मैंने अपना जो डिसीजन दिया है वो गलत है, तो वो जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है. वो तो मेरा अपना असेसमेंट है एविडेंस का, वो मेरा अपना एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है, वो रिवीजन के काबिल नहीं है. तो प्लीज रिमेंबर, रॉन्ग असेसमेंट, wrong appreciation of evidence where the jurisdiction was correct will not come under the purview of revision, provided that the High Court shall not, under this section, vary or reverse any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding. कायदे से इस सेक्शन में किसी ऑर्डर को वेरी नहीं करेगा, रिवर्स नहीं करेगा हाई कोर्ट, except where the order, if it had been made in the favor of a party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceedings.
इन अदर वर्ड्स, वो ऑर्डर जो फाइनली डिस्पोज ऑफ करेंगे उन पे हाई कोर्ट कर सकता है। जो ऑर्डर्स फाइनली डिस्पोजल नहीं कर रहे, ऐसे कौन से ऑर्डर होते हैं जो फाइनल डिस्पोजल नहीं कर रहे? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स। तो प्रोवाइजो कहता है कि इंटरिम ऑर्डर्स पे रिवीजन नहीं है, सिर्फ उन ऑर्डर्स पे रिवीजन है जो फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं एक मैटर को। अगर कोई फाइनली डिस्पोज ऑफ कर रहा है वो रिवाइज हो सकता है, पर अगर कोई इंटरिम ऑर्डर है, कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, तो फिर नहीं है। Subsection 2. The High Court shall not under this section vary or reverse any decree or order against which an appeal lies either to the High Court or to any court subordinate thereto. क्वेश्चन ये उठता है कि अब अगर कोई भी अपीलेबल ऑर्डर है या अपीलेबल डिक्री है, चाहे हाई कोर्ट को अपील लाई करती हो या उसके नीचे कोर्ट को अपील लाई करते हो, तो वो रिवाइजेबल नहीं है। Subsection 2 says wherever an appeal is available, no revision lies. अब एक क्वेश्चन उठता है, अपील लाइज टू सपोज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के बाद एक सेकंड अपील लाई करती है, हाई कोर्ट के पास होती है, तो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब एक बड़ा एक पॉइंट क्वेश्चन उठ गया यहाँ पे कि एक अपील तो डायरेक्ट होगी जो मैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ मैं सेकंड अपील में जा सकता हूं हाई कोर्ट में, जिसको मैं इनडायरेक्ट अपील कहूंगा। तो क्या दोनों कवर हो रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्ट अपील की बात कर रहा हूं? इस क्वेश्चन को हम अभी ओपन रखते हैं, क्योंकि एक इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी थी, फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इसको ठीक किया था। So subsection 2 has clarified that whenever any appeal lies to the High Court or to the subordinate court, then no revision lies. So in other words, appealable decrees or orders cannot be the subject of revision. Subsection 3. A revision shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by the High Court. As a general rule, revision will not act as a stay. Merely क्योंकि मैंने हाई कोर्ट के पास रिवीजन डाल दी is no ground कि ऑटोमेटिक स्टे हो गया, एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा या मामला रुक गया। So mere application for revision, or even if revision is agreed to, it will not automatically stay the suit or the proceedings of the suit at whatever stage it may be, unless that the High Court now gives specific orders to stay the proceedings till it decides the revision. इसलिए जब कोई रिवीजन डालता है तो उस प्रेयर में एक और प्रेयर डाल देता है कि सर, जब तक आप सुनवाई कर रहे हो तब तक कार्रवाई को, लोअर कोर्ट की कार्रवाई को स्टे कर दो। Explanation. In this section, the expression any case which has been decided includes any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or a proceeding. So the word case is a very wide word. It doesn't only mean a decree, a judgment, but also includes orders. This was the first reading of the revision. I've given you the object of revision. Now, you know, before, of course, we have very, very less time. मैं एक चीज को compare करना चाहूंगा before I close in today. Articles 226, 227 vis-a-vis revision. एक बार ये देखते हैं.
115 भी पावर देता है हाई कोर्ट को, 226, 227 भी पावर देते हैं हाई कोर्ट को। इनका आपस में रिश्ता क्या है? रिवीजन की जो टर्म्स हैं वो बड़ी लिमिटेड है। 3 जुरिस्डिक्शनल टर्म्स हैं। जुरिस्डिक्शन था, नहीं किया, नहीं था, कर दिया, या इरेगुलरली या इलीगली किया। तभी लॉ कमीशन ने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 हमारे पास फुल फ्लेज्ड आर्टिकल्स हैं, 226, 227, there was no need. I would like to quote here इस context में the Supreme Court judgment, शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस स्वराज डेवलपर्स 2003 Supreme Court. Please write down. Section 115 is essentially a source of power for the High Court to supervise the subordinate courts. It does not in any way confer a right on a litigant aggrieved by any order of the subordinate court to approach the High Court. The scope of making a revision under 115 is not a substantive right. Appeal, अगर मुझे, if the statute gives me power of appeal, it is a right. I have to exercise it. Revision is not a right to move कि मुझे तो दो. It always is the prerogative of the High Court to revise or not to revise. The Supreme Court judgment makes it very clear. Section 115 does not give a substantive right. Whether there was a dereliction of justice or not will be the key word for the High Court to decide to allow or not to allow. Also, I would like to say the powers under 115 of the code and power under 227. The power under section 115 of CPC and the power under article 227 of the Constitution are quite distinct and different and are not interchangeable. Thus, where there is a remedy available under 115 CPC, then the court should not exercise its powers under article 227 unless it is an exceptional case. एक ही कोर्ट है, एक ही चीज कर रहा है, पर यहां पे लिमिटेड है. 115 लिमिटेड है जुरिस्डिक्शन तक, 227 का कोई लिमिट नहीं है. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स अब यहां नहीं जा सकते, वहां जा सकते हो. किसी भी मामले में जहां पार्टी एग्रीव्ड है, जहां जस्टिस नहीं हो रहा, वो 226, 227 के दरवाजे खुले हैं उसके पास. तो कोई आदमी 115 में क्यों जाएगा, 227 में जाएगा. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है 115 डिस्टिंक्ट है. अगर 115 में रेमेडी नहीं मिल रही है तब 227 में जाए, यहां पे पहले जाएगा. दोनों दो अलग चीजें हैं, सेम कोर्ट्स हैं, दोनों जस्टिस के लिए हैं, बट फिर भी दोनों डिफरेंट हैं. I hope I have made absolutely clear on the relationship between 115 CPC and 226, 227 of our Constitution. Before I close, एक चीज और, how is appeal different from a revision? ये भी लिख लो एक बार. As far as appeal is concerned, I would like to quote the Honorable Supreme Court. शंकर राम चंद्रा वर्सेस कृष्ण जी बापट, पहले भी लिखवाया मैंने आपको. शंकर राम चंद्रा वर्सेस कृष्ण जी बापट, 1970 सुप्रीम कोर्ट.
Also, I would like to quote another one. Sarla Ahuja versus United India Insurance Company, 1999 Supreme Court. Sarla Ahuja versus United India Insurance Company Limited, 1999 Supreme Court. What is the relationship between revision and appeal? No doubt revision is somewhere a sort of an appellate jurisdiction. कोई शक नहीं है. एक appellate jurisdiction का ही part है revision. कोई शक नहीं है. Basically and fundamentally, I'm quoting the Supreme Court. ये Supreme Court से बोल रहा हूँ. Basically and fundamentally, a revision power is also a part of the appellate jurisdiction. However, having said this, there is a basic difference. Pehla, right to appeal carries with it a right of rehearing both on the matter of fact as well as on matter of law. ये basic चीज है. जब भी मैं appeal word use करता हूं, whenever I use the word right to appeal, it carries an inherent right, though it is being given by the statute. But then now it gives me a right in capital letters. It gives me a right to be reheard both on matters of fact and as well as matters on law. Jurisdiction is limited to only revision is limited only to jurisdictional aspects. And also, wherever there is a right to appeal, revision is barred. तो जहां अपील नहीं है वहीं रिवीजन है, और रिवीजन का दायरा बहुत छोटा है सीपीसी में. सीपीसी में दायरा सिर्फ जुरिस्डिक्शन तक बेस्ड है. These were the basic judgments of the Honorable Supreme Court on various matters. So I hope now everybody is clear about, because ये जो एक wide view मैं आपको दे रहा हूँ वो देखना जरूरी है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये पावर्स वहां भी हैं. तो आर्टिकल 226 और 227, और ये भी हाई कोर्ट की है, ये भी सुपरवाइजरी पावर है, वो भी सुपरवाइजरी पावर, ये सारी हैं. बट देन हमने इनकी बारीकियों में फर्क देखा है कि है तो सेम बट बहुत फर्क है तब भी. So I hope everybody is clear on all these aspects. I'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless.